Hi friends, welcome to English Study Point. In this video lecture, I am going to discuss with you about different types of criticisms existing in literature. This video is part number 2. Now I am describing about constructive criticism or constructive approach. So a critique while analyzing a text through this constructive approach, he always tries to emphasize that a writer writes any kind of work setting purpose in his mind. So that purpose he wants to convey to his audience who is reading his work. So at the same time or simultaneously, that critique also talks about that when it comes to analyzing a text by him, means by a writer. So what a critique does here is that he always tries to analyze writer's work by following a unique approach that is not adopted by writer at the time when he is writing. So always a critique used to adopt different as well as unique kind of approach or alternative kind of approach while analyzing a text following this constructive criticism. कहने का मतलब है कि जब भी एक वर्क को एनालाइज किया जाता है या फिर उस वर्क के बारे में एक क्रिटिक उसे क्रिटिक कर रहा होता है। क्रिटिक और क्रिटिक दो अलग अलग स्पेलिंग्स है। CRITIC वो क्रिटिक हो गया यानी एक इंडिविजुअल, एंड उस वर्क को यानी राइटर के लिखे गए वर्क को वो क्रिटिक कर रहा है। क्रिटिक की स्पेलिंग CRITIQUE। अगर एक क्रिटिक किसी के वर्क को क्रिटिक कर रहा है तो वो उस वर्क को डिफरेंट अप्रोच ऑल्टरनेटिव अप्रोच के साथ एक वर्क को एनालाइज करेगा जो कि उस राइटर ने एक टेक्स्ट को लिखते वक्त नहीं अडॉप्ट करी होगी। तो क्रिटिक डिफरेंट तरीके की अप्रोच से एक टेक्स्ट को एनालाइज करेगा। सो दिस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ट्राइज टू शोज एन इंटेंट और पर्पस ऑफ समथिंग इज़ बेटर सर्व्ड बाय एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। सो उसका यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर ये कहना है कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो हमें हमेशा एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। एंड he tries to also states that making the criticism is not wrong. Okay, here he is saying that whenever we analyze any kind of text following alternative approach that is not adopted by a writer when he is writing any kind of text, so if we are following alternative approach and doing criticism or critiquing his work on the basis of alternative approach, so that criticism is not wrong and could be better achieved via different route. So he is here emphasizing, means here a critique is emphasizing that if we follow different routes for analyzing any writer's text, so that criticism cannot be called as wrong. So here we are always here we are following an alternative approach, and through that alternative approach we are trying to bring something unique to a text. अगर हम किसी alternative approach को के बेसिस पर किसी टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई हमारा क्रिटिसिज्म एक वर्क के प्रति रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ अप्रोच ही चेंज कर रहे हैं एंड उस अप्रोच से क्या पता कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट बाहर निकल के आए। सो इस क्रिटिसिज्म से एक क्रिटिक ये सजेस्ट करना चाहता है। देन this constructive critiques, they provide suggestion for improvement. So first they used to find faults in a text, then at the same time or simultaneously they try to provide suggestions for improvement, and also they emphasize that how things could be done better or मोर एक्सेप्टेबल टू एन ऑडियंस। तो वो हमेशा सबसे पहले एक टेक्स्ट में फॉल्ट्स फाइंड करते हैं, देन वो सजेशंस बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है एंड चीज़ें कैसे बेहतर बन सकती है, एंड एक क्रिटिसिज्म को कैसे रीडर्स के लिए एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है। सो इस चीज़ पर मतलब ज़ोर देते हैं। देन they try to draw attention to how an identified problem could be solved. Yes, वो हमेशा अगर कोई टेक्स्ट में
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो हमें सॉल्यूशंस बताते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम अगर टेक्स्ट में आ जाती है तो उसे सबसे पहले किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है चाहिए, एंड देन हाउ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व एंड हाउ इट कुड बी सॉल्व इन अ मोर बेटर वे। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एंड फिर तीसरा स्टेप कि उसे बहुत अच्छे, बहुत बेहतर तरीके से या फिर बहुत बेटर तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एंड he used to emphasize, means here critique used to emphasize, that those who find faults with something should also offer an option for putting it right। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक टेक्स्ट के अंदर वाकई में फॉल्ट है, यानी राइटर ने लिखते समय कुछ ना कुछ गलती की है, अगर आपको उसके टेक्स्ट को पढ़कर कोई गलती नज़र आती है, देन अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो साथ ही साथ आपको उससे रिलेटेड एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी बताना होगा जिससे उस फॉल्ट को ठीक किया जा सके। देन here critics identify problems in a work and also try to solve in a better way. So this is constructive approach. Now I am telling you about destructive criticism. So a critic analyzes any text through this approach. He never is able to fulfill target of criticism. So here target of criticism means that always we have a target while critiquing any kind of work that we offer. We as a critic try to offer good as well as bad viewpoints related to work of a writer we are reading. Now, in destructive criticism, as the name itself suggests, that a critic is never able to give good reviews, nor he is able to give bad reviews related to a work that he is reading. So he is ultimately destroying target of criticism by not giving any kind of bad as well as good viewpoints related to a work दैट ही इज़ रीडिंग। तो यहाँ पे राइटर अगर किसी भी तरीके के, ना तो वो अच्छे रिव्यूज़ दे रहा, ना वो बुरे रिव्यूज़ दे रहा, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली क्रिटिसिज्म के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि क्रिटिसिज्म का टारगेट क्या होता है कि एक वर्क को रीड करना एंड उस वर्क से रिलेटेड अच्छे या फिर बुरे व्यू पॉइंट्स देना। तो यहाँ पे दोनों ही काम नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर इस क्रिटिसिज्म का नाम पड़ा है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बिकॉज हेयर अ क्रिटिक इज एमिंग टू डिस्ट्रॉय द टारगेट ऑफ क्रिटिसिज्म बाय नॉट प्रोवाइडिंग any kind of good as well as bad reviews related to a work, then shows that the point of view of someone else has no validity at all। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को भी बता रहा है कि उसने एक राइटर के वर्क को पढ़ा एंड उसने करेक्टर्स की साइकोलॉजी को समझना शुरू किया। देन उसने ये देखा कि वहाँ पर उस टेक्स्ट में प्रेजेंट जितने भी करेक्टर्स हैं उनके जो व्यू पॉइंट्स है वो बिल्कुल वैलिड नहीं है एंड ना ही उन करेक्टर्स की कोई पोजीशन है। तो उसने उस चीज़ को अपने क्रिटिसिज्म को देना, यानी उन करेक्टर से रिलेटेड व्यू पॉइंट्स देना वहीं बंद कर दिया, क्योंकि उसे उन करेक्टर्स के व्यू पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड नहीं लगे। सो उसने इस वजह से क्रिटिसिज्म देना बंद कर दिया, अपने रिव्यूज़ वो दे ही नहीं पाया। देन दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म कॉजेज़ साइकोलॉजिकल हार्म। यस, क्योंकि ये क्रिटिक क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है। क्योंकि एक राइटर ने बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ चीज़ें लिखी होती है, बट वो पहले से ही अगर वो किसी टेक्स्ट को स्टार्ट में रीड करता है एंड स्टार्टिंग में ही वो इतने सारे फॉल्ट्स निकालना शुरू कर देगा एंड किसी भी तरीके का फीडबैक नहीं प्रोवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं राइटर को एक तरीके से साइकोलॉजिकल हार्म होगा। अगर मैं भी अपनी बात करूं कि अगर मेरा वर्क कोई रीड ही ना करे एंड ना ही मुझे उस वर्क से रिलेटेड जो भी लोग मेरे वर्क को पढ़ रहे हैं अगर उससे रिलेटेड मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मेरी साइकोलॉजी भी इससे अफेक्ट होगी कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया था कि जिसकी वजह से जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं वो उस वर्क से रिलेटेड कुछ फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म कॉजेज साइकोलॉजिकल हार्म विच रिजल्ट्स इन लोअर लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम। यस, इससे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा एंड
This type of criticism is regarded as an undesirable nuisance, a threat, or completely unjustifiable because it involves personal attacks. यस, अगर एक क्रिटिक मेरे वर्क को एनालाइज कर रहा है और वो बार बार इतनी सारे फॉल्ट्स निकाल देगा एंड उनमें सिर्फ और सिर्फ जो भी मैं करेक्टर क्रिएट कर रही हूँ उन करेक्टर्स की साइकोलॉजी को समझते टाइम वो उन करेक्टर्स पर पर्सनल अटैक करेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा कि भाई मैंने एक वर्क इतने अच्छे इंटेंशन से लिखा एंड उस वर्क को पढ़ने के बाद किसी क्रिटिक ने इस तरीके के रिव्यूज़ दिए, देन दिस क्रिटिसिज्म हैज़ अ डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट. Yes, and also this type of criticism is used in political context also to save lives of one's own group. यस, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जाता है. वो इसलिए कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्पीच दे देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्पीच कंट्रोवर्शियल बन जाती है. एंड जब वो कंट्रोवर्शियल बन जाएगी तो फिर क्या होगा कि लोग बहुत गंदी तरीके से उस जो भी स्पीच दे रहा है उसको बहुत उस पर एलिगेशंस लगाएंगे, फॉल्स एलिगेशंस. तो यानी जो स्पीच दे रहा है उसके जितने भी सपोर्टर्स होंगे वो उसे बचाने की कोशिश करेंगे. तो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है ताकि एक इंसान यानी एक पॉलिटिकल ग्रुप का मेंबर अपने लीडर को इससे बचा सके एंड दूसरों को यानी अपने ओपोनेंट्स को गलत तरीके से क्रिटिसाइज़ करके उन्हें लोअर फील करवाया जा सके. सो इसलिए भी डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का यूज़ किया जाता है. जैसे कि अगर मैं एक स्पीच दे रही हूँ एंड मेरे सपोर्टर्स एंड मेरे ओपोनेंट्स को वो स्पीच पसंद नहीं आ रही, तो मेरे सपोर्टर्स क्या करेंगे, इस डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का यूज़ करेंगे एंड मेरे सपोर्टर्स उन ओपोनेंट्स को झुकाने की कोशिश करेंगे, उनको लो फील करवाने की कोशिश करेंगे, उन पे फॉल्स एलिगेशंस लगाएंगे ताकि वो मेरे. In practical criticism, a critique is always tries to showcase things by doing practical experiment. And also whenever a critique is reading any kind of text following this practical criticism approach, and if he finds in a work any idea or many kinds of ideas not appropriate according to him, so while reading that work he always puts objection. And also if he finds ideas, so many ideas which are appropriate according to him, so he also at the same time appraise or tries to give appraisal to that particular idea which is presented by a writer in his text. So in practical criticism, a practical critique tries to show things with experiment, and he is of the view that something works well by doing practice even though they theory says it is not possible. कि कभी कभार थ्योरी में ऐसा कहा जाता है कि इस चीज़ का होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग क्रिटिक इस चीज़ को भी पॉसिबल करवा देता है प्रैक्टिस के थ्रू कि यस, जो चीज़ पॉसिबल हो नहीं सकी वो प्रैक्टिस के थ्रू पॉसिबल हो सकती है. एंड ऑल्सो ही ट्राइज टू टॉक अबाउट एनी आइडिया यूज बाय अ राइटर माइट बी फाइन इन थ्योरी बट इन प्रैक्टिस इट डज नॉट वर्क. यानी कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करते समय वो ये भी बताता है कि कोई आइडिया जो कि राइटर द्वारा अपने वर्क में टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी में ही डिस्कस किया हुआ अच्छा लगता है, बट अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो उस आइडिया का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उस आइडिया की. सो ही इज़ ऑफ द व्यू दैट ही गिव्स मीन्स प्रैक्टिकल क्रिटिक ऑलवेज ट्राइज टू गिव two kinds of views, and those views are binary views. First he is trying to showcase us that any idea used by a writer might be fine. यानी किसी भी राइटर के द्वारा यूज़ किया हुआ अपने वर्क के अंदर एक आइडिया फ़ाइन है, वो भी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही फ़ाइन है. अगर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया जाए तो वो बिल्कुल सही नहीं है. सो एक व्यू पॉइंट प्रैक्टिकल क्रिटिक ने ये दिया कि बट इन प्रैक्टिस इट डज़ नॉट वर्क. देन
वो कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। देन वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्रैक्टिस करके भी पॉसिबल कर की जा सकती है, इवन दो थ्योरी सेज इट इज़ नॉट पॉसिबल। कि थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि कुछ चीज़ों का पॉसिबल यानी कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बट प्रैक्टिकल क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर हम लगातार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें तो यस, हम उस इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ showing relevant practical experience to reveal why an action is wrong headed or under what condition it would succeed। कि अगर कोई आइडिया बहुत गलत है, यानी अगर एक करेक्टर द्वारा एक्शन लिया हुआ एक वर्क के अंदर बिल्कुल गलत है, तो वो अपने व्यू पॉइंट्स देंगे कि उन एक्शंस को किस कंडीशन में सही किया जा सकता है, एंड उस इंसान को उस कंडीशन से बाहर निकलकर कैसे सक्सीड करवाया जा सकता है। सो इस तरीके के भी प्रैक्टिकल क्रिटिक्स व्यू पॉइंट्स देते हैं। अगर वो एक वर्क में इस तरीके का करेक्टर फाइंड कर लेते हैं कि उसने जो एक्शन लिया है वो बिल्कुल गलत है, तो यानी उसके गलत एक्शन को भी एक क्रिटिक ये बताने की कोशिश करता है कि उसे किन कंडीशन में रखकर उस करेक्टर को सक्सीड यानी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। देन व्हेन समवन प्रपोजेज एन आइडिया, others might first consider if it makes sense but raise concerns about practicality and consequences। कि अगर कोई भी आइडिया है, कोई नया आइडिया अगर कभी भी इंट्रोड्यूस होता है, तो उस आइडिया से रिलेटेड बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के इश्यूज़ रेज करते हैं कि उस आइडिया जो कि आया है एक प्रोपोनेंट द्वारा फॉर्म किया गया एक आइडिया है, तो उस आइडिया की प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी वैलिडिटी है, कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना वैलिड होकर रह सकता है, एंड उस आइडिया के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। सो इस तरीके के इश्यूज़ रेज किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का एग्जाम्पल है। तो अगर कोई आइडिया, सपोज़ मैं कोई आइडिया लाने की कोशिश करती हूँ, या फिर मैं कोई नए आइडिया के साथ एक बिज़नेस शुरू करती हूँ, तो उस बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे लोग, यानी जो उस बिज़नेस में मेरे पार्टनर्स बनने वाले हैं, तो वो बहुत सारे तरीके के अलग अलग कंसर्न्स रेज़ करेंगे कि मेरे उस बिज़नेस की आज के कंटेम्प्रेरी एरा में वो कितना लंबा जा सकता है, उसका किस तरीके से फ्यूचर हो सकता है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, कि वो आगे चलकर वो मेरा बिज़नेस सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल तरीके से Now, this theoretical criticism, a critique tries to suggest that every day new theories keeps on emerging, and these theories bring with them new kinds of ideas, and these ideas are very यूज़फुल फॉर पीपल लिविंग इन दिस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। तो कहने का मतलब है कि जब भी ये न्यू थ्योरीज इवॉल्व होती रहती है, तो ये अपने साथ आइडियाज़ लेकर आती हैं, एंड इन आइडियाज़ को लोगों द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है जो आज इस कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में रह रहे हैं। सो लिटरेचर के सेंस में थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म का मतलब है कि हमेशा ये थ्योरीज़ के साथ आइडियाज़ आते हैं, एंड ये आइडियाज़ कब तक वैलिड होकर रह सकते हैं, यानी सबसे पहले ये आइडियाज़ लोगों के लिए कितने मीनिंगफुल रह सकते हैं, इन आइडियाज़ का इन लोगों के साथ, कंटेम्प्रेरी लोगों के साथ, रियल लाइफ लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, एंड इन आइडियाज़ को किस पर्पस के साथ इवॉल्व किया गया, एंड ये आइडियाज़ कब तक वैलिड होकर सर्वाइव होकर रह सकते हैं। फिर इन आइडियाज़ के बारे में लोगों ने व्यू पॉइंट्स देने शुरू किए, एंड फिर उन लोगों ने लिमिटेशंस बताई इन नई नई थ्योरीज़ के साथ साथ इन आइडियाज़ की भी। सो दीज थ्योरीज़ आर कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ आइडियाज़, कि आइडियाज़ कितने मीनिंगफुल होकर रह सकते हैं, इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑन विच अ प्रैक्टिस इज़ बेस्ड। अगर कोई आइडिया आया है, तो उस आइडिया एक नई तरीके का कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट को लोग किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो ये क्या है, थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स
merits of theories are usually judged according to three main criteria कि इन नई नई थ्योरीज़ की पोजीशन को किस तरीके से जज किया जा सकता है। अलग अलग 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि ये थ्योरीज़ क्या है, ये नए नए कॉन्सेप्ट्स लोगों के लिए कितने यूज़फुल है। देयर एक्सप्लेनेटरी पावर कि वो आइडियाज़ उन लोगों के यानी उन थ्योरीज़ को जिन्होंने इवॉल्व किया है, तो लोग जिन्होंने भी इवॉल्व किया है या फिर उसके फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, तो वो क्या इन थ्योरीज़ के इन नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये थ्योरीज़ कब तक सरवाइव होकर रह सकती है, किस तरीके से ये लोगों के लिए मीनिंगफुल है। तो इनके बारे में इनके फाउंडिंग फादर्स किस वे में एक्सप्लेन करते हैं इन थ्योरीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में। एंड देयर प्रिडिक्टिव पावर कि ये थ्योरीज़ कब तक सरवाइव हो सकती है, इनकी लाइफ स्टाइल कब तक की है। सो थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म इस बारे में है। सो इसे अगर लिटरेचर से कनेक्ट किया जाए तो वही आइडियाज़ से रिवॉल्व होते हुए उन आइडियाज़ की यूज़फुलनेस लिटरेचर के अंदर, एंड उन आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की ताकत रखना, एंड उसी के साथ ये बताना, प्रिडिक्ट करना कि ये आइडियाज़ कितने पावरफुल हो सकते हैं, किस तरीके से ये आइडियाज़ लोगों पर इन्फ्लुएंस इन आइडियाज़ का लोगों पर इन्फ्लुएंस किस तरीके से पड़ सकता है। Now here comes the turn of public and private criticism. So first of all, I am explaining you about private criticism. So they are expressed और ओनली एक्सपीरियंस प्राइवेटली कि अगर मैं किसी राइटर के वर्क को पढ़ रही हूँ एंड मैं नहीं चाहती बाकी सारे रीडर्स के साथ शेयर करना कि मेरा उस वर्क को पढ़कर क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं क्या व्यू पॉइंट्स दे रही हूँ, वो अपने मन में रखूँगी। सो दिस टाइप ऑफ criticism suggests that while I am reading any kind of work, I am not expressing to the readers or not letting myself or my viewpoints express in front of the readers, because what I am reading is I want to retain that as personal। क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ मैं उसे पर्सनल रखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो रीडर्स तक पता चले, क्योंकि कुछ आइडियाज़ राइटर्स द्वारा लिखे हुए ऐसे होते हैं जिन्हें रीडर्स को बताना सही नहीं लगता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट क्रिटिसिज्म माइंड तक ही लिमिटेड रह जाता है कि मैं अपने मन में सोचती हूँ कि यस ये ऐसा वर्क होगा, तो मेरे को बाकी सारे लोगों के सामने इस चीज़ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मैं अपने माइंड में ही उस वर्क के बारे में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं अपने माइंड में सोच लूँगी। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट विद अदर रीडर्स while giving my explanation or viewpoints related to that particular work of a writer I am reading. So they are not expressed or only expressed privately, because critique believes that public knowledge of the criticism would harm the critique or others. So ऐसा critique सोचता है कि अगर मैं अपनी knowledge इस work से related अगर मैं अपने व्यू पॉइंट्स पब्लिकली शेयर कर दूंगा तो कहीं ना कहीं इससे मेरी पोजीशन को ख़तरा हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं मेरी पोजीशन बहुत ख़तरे में हो सकती है अगर मैं कुछ ना कुछ इस वर्क से रिलेटेड बाकी सारे लोगों के सामने पब्लिकली इस वर्क से रिलेटेड कुछ भी शेयर कर दूँ तो। सो पीपल फर्स्ट एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म प्राइवेटली टू टेस्ट देयर वैलिडिटी। सो कभी भी कोई राइटर अगर इस तरीके के किसी भी राइटर के वर्क को रीड करता है एक क्रिटिक, तो वो सबसे पहले अपने आप को प्राइवेटली टेस्ट करता है, यानी वो अपने व्यू पॉइंट्स किसी से शेयर नहीं करता। वो अपने माइंड में सोचता है कि मेरे व्यू पॉइंट की क्या वैलिडिटी हो सकती है एंड इससे क्या फॉर्मुलेशन हो सकता है, यानी किसी भी आइडिया का फॉर्मुलेशन हो सकता है या नहीं। एंड अगर मैं इस वर्क से रिलेटेड इस तरीके के व्यू पॉइंट्स देता हूँ तो लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे। सो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखता है सबसे पहले, इसलिए वो प्राइवेटली करता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर मैंने लोगों को अपनी नॉलेज एक्सपोज कर दी इमीडिएटली तो कहीं ना कहीं इससे मेरी पोजीशन बहुत ख़तरे में हो सकती है, यानी मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। देन इट मे रिक्वायर करेज, कन्विक्शन और सर्टेनिटी टू एक्सप्रेस अ क्रिटिसिज्म पब्लिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होती है अगर किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं एंड एकदम से जैसे ही पढ़ने के बाद उस वर्क से रिलेटेड अगर मैं क्रिटिसिज्म दे रही हूँ और फटाफट मैं लोगों के सामने इस चीज़ को एक्सपोज कर दूँ
एंड तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्राइवेट क्रिटिसिज्म का मतलब है कि जो भी हम वर्क पढ़ रहे हैं, सो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है, सबसे पहले वो हम अपने तक लिमिटेड रखें। देन पब्लिक क्रिटिसिज्म मीन्स दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस एनोनिमसली और अंडर अ सिडोनिम। यस, कि अगर पब्लिक क्रिटिसिज्म देना है, किसी वर्क से रिलेटेड मैं कुछ कहने वाली हूँ, तो मैं पब्लिक को अपने थॉट्स अपना नाम लेके, अपना रियल नाम नाम ना लिखकर एनोनिमस तरीके से या फिर सिडोनिम का कुछ यूज़ करके, तब मैं अपने नॉलेज को बाकी सारी पब्लिक के सामने शेयर करूँगी, क्योंकि इससे मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है वो कभी भी पब्लिक को मेरी रियल आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा। सो क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस एनोनिमसली और अंडर अ सिडोनिम, इन दिस केस द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिटिक और द सोर्स ऑफ द क्रिटिसिज्म रिमेन्स अननोन। इन दिस केस द क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट इन पब्लिक। तो इसलिए पब्लिक क्रिटिसिज्म का मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ पर अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हो, तो अगर आप एकदम से अपने आप पब्लिक को बताना चाहते हो, तो आप अपना रियल नाम मत लिखो। उसे यानी उसे कुछ नाम ही ना दो। अपने रिव्यूज़ पे जो नीचे नाम लिखते हैं, तो उनको नाम ही मेंशन मत करो। एंड या फिर अगर आपको नाम मेंशन करना है, तो आप रियल नाम ना लिख के आप सिडोनिम का यूज़ कर सकते हो। देन फिर आप अपने नॉलेज को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर सकते हो। देन विद this video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.